Right. I don't know. चलो ठीक है, कोई नहीं, we can manage. I believe everything is manageable in life. Absolutely. और आज हम लोग वही सीखने के लिए आए हैं आपसे, शालिनी जी. So I will just spotlight your video and let us begin the session. I will first like to thank you, Shalini ji, because we were unknowns before, we connected on LinkedIn, and आपने बहुत प्यार से मेरा request accept किया to come on cafe, and I will always be thankful कि somebody like you who's achieved so much in life, and आपके पास इतना कुछ है सबके साथ शेयर करने के लिए, and आप उसका पूरा अच्छे से यूज कर रहे हो, and you are every day you're inspiring so many people, not just women but others also, कि giving up is not an option. And I have a special song for you which I would like to play. So पहले थोड़ा सा आवाज कम कर देती हूँ because ज़्यादा साउंड हो जाएगा तो. Is it audible? ये हौसला कैसे झुके, ये आरज़ू कैसे रुके, ये हौसला कैसे झुके. It's a beautiful song, and I think आपकी स्टोरी पढ़कर मुझे सबसे पहले यही गाना याद आया. और ये जो आज का सेशन है वो भी हौसलों की उड़ान है, एंड ये नाम मैंने आपसे बात करने के बाद ही फाइनल किया था. उसके पहले ये नाम मैंने फाइनल नहीं किया था सेशन का. एंड तो मुझे नाम बहुत अच्छा लगा था. एक हीरो है एट कैफे प्लेटफॉर्म, एंड वी आर एक्चुअली वेरी वेरी ऑनर्ड. So I will just begin with your formal introduction. पूरा सेशन आपके बारे में है और आपसे सीखने के लिए ही है, बट कुछ इन्फॉर्मेशन आपकी मैं सबको बताना चाहूंगी. So 2-3 दिन पहले मेरे पास एक मेल आया था, उसमें पहले 2 लाइंस ऐसे लिखे थे: Strength does not come from winning. Your struggles develop your strengths. When you go through hardships and decide not to surrender, that is strength. पढ़ के मुझे लगा ये आपके सेशन में मैं ज़रूर यूज़ करूँगी, बिकॉज बिल्कुल एप्ट है आपके लिए. आपकी जो लाइफ जर्नी रही है वो एक स्ट्रॉन्गेस्ट विमेन मैं बोल सकती हूँ जिसकी मैंने आज तक सुनी है या पढ़ी है, वो उनमें से एक है. एंड यू आर ट्रूली अ एपिटोम ऑफ स्ट्रेंथ. आज हम सबके लिए घर ले जाने के लिए बहुत कुछ रहेगा आपसे सुनकर. एंड फॉर एवरीवन हियर एट कैफे, वेलकम टू दिस सेशन, हौसलों की उड़ान विद कैप्टन शालिनी सिंह. कैप्टन शालिनी सिंह is a proud Indian Army veteran, inspirational speaker, and also Mrs. India Queen of Substance 2017. She also became the first Indian to represent country in beauty pageant Miss Earth in USA in the single parent category. Honored by Mrs. Savita Kovind and Indian Army, Captain Shalini has won many awards. A few are like Veer Nari Samman Puraskar by Government of India, Epic Award 2018, citations of honors by Lions Club and All India Achievers Awards, and there is a long list. She has traveled a remarkable journey from being an ordinary housewife. I will not say ordinary housewife because housewives are never ordinary. So she has traveled a remarkable journey from being a housewife, a mother, to a Veer Nari. She is a martyr widow of Major Avinash Singh Bhadoria, who is a Kirti Chakra winner, and to herself becoming lady officer in Indian Army. So that is, very inspiring thing to know that after that incident you joined Indian Army yourself. After that, to a corporate life to take care of your son, and to almost a fatal accident
from there to Mrs. India, and now you're a motivational speaker. So Shalini ji, you have done it all, I guess, and आगे भी आप बहुत बहुत आगे तक जाओगे और बहुत लोगों को इंस्पायर करोगे. And we begin the session. I will ask you to share about your inspirational journey. And आप शुरू से ऐसे ही थे कि circumstances की वजह से आप इतने strong हो गए. Okay, thank you कविता. शालिनी जी, आपकी आवाज नहीं आ रही है. आ नहीं रही आवाज? Can you hear me now? Just a second. Yeah, अभी आ रही है. आ रही है? Yeah. ठीक है. Can everybody can hear me ना? Yes. Okay, great. So सबसे पहले कविता, I would like to thank you so much for इतना बढ़िया introduction, इतना बढ़िया गाना. You know, जब भी मैं ऐसे कोई गाने सुनती हूँ ना, तो suddenly I get those goosebumps आ जाते हैं मुझे. And secondly, मैं कल के लिए I want to apologize with everybody. Something happened which was beyond my control, तो मैं कल का session ले नहीं पाई. And I'm really sorry for that. And I'm really honored that I'm getting to see so many you ladies on this platform, and मुझे बहुत अच्छा लगता है when I connect with ladies, because I feel कि हमें ना बहुत कमज़ोर माना जाता है, and जबकि मुझे लगता है इसका उल्टा है. We are the one who is moving this entire planet. Absolutely. So I will somehow my screen जो है वो share नहीं हो I will share. So कविता will help me. तो थोड़ा बहुत gap होगा हमारे कहने और मेरे कहने और कविता के sharing में. So kindly bear with us. And बीच-बीच में एक दो black screens आएंगी. तो it is just that so you don't get distracted on the pictures and you're able to hear me much better. So if there are 2-3 black screens, please don't panic कि black क्यों हो गया. So the first screens, Kavita, can you share? Yeah. Yeah. So I will start. So I will not. आप लोगों को मैं ज़्यादा बोर नहीं करूँगी, but definitely मुझे ऐसा लगता है कि जो हम ladies हैं, हमारी life जो है it's बहुत आम समझी जाती है, और कई बार ऐसा समझा जाता है कि ladies handle नहीं कर सकती, या woman in general और human being को भी समझा जाता है कि बहुत लोग भी हम जैसे देखते हैं कि जल्दी जल्दी लोग हिम्मत हार जाते हैं, हिम्मत छोड़ देते हैं. सो आपको एक छोटी सी जर्नी पे लेके जाऊंगी. विद दैट जर्नी इज अबाउट माय लाइफ. मेरी लाइफ स्टोरी है, और इसमें आप 4 पिक्चर्स देख रहे हैं. इसमें सबसे पहले आई हैव रिटन जर्नी सो फार, कि अभी तक की जर्नी इतनी है, आगे पता नहीं अभी क्या क्या ऐड करूंगी. तो फर्स्ट पिक्चर यू कैन सी मी एज अ होमली गर्ल डूइंग घर का काम एंड हाउस चोर्स, विच आई टोटली बिलीव कि बहुत इंपॉर्टेंट काम होता है ये भी. सेकेंड, आप देखेंगे एक यूनिफॉर्म में मुझे, विच आई एम एन आर्मी ऑफिसर. थर्ड, एक मैराथन रनर भी हूँ मैं, कैसे बनी इसकी भी कहानी बताऊंगी. और फोर्थ पिक्चर, हाउ आई बिकेम मिसेस इंडिया. और भी हैं, ऐड करती जाऊंगी धीरे धीरे, बट अभी तक यहाँ तक मैं आपको अपनी जर्नी सुनाऊंगी. नेक्स्ट पिक्चर करें तो. एंड सो आई हैड मेरी लाइफ जो है बहुत एक नॉर्मल सिंपल गर्ल की थी, जैसे एक हमारे हिंदुस्तान में होते हैं. और मैं एक राजपूत फैमिली को बिलोंग करती थी. सो हमारी जो लाइफ थी बहुत ज़्यादा मेल शील्डेड एनवायरनमेंट था हमारे घर में. मैन यूज्ड टू टेक चार्ज ऑफ एवरीथिंग. वो डिसाइड करेंगे आप आगे अपनी लाइफ को कैसे लीड करोगे, आप कैसे पढ़ाई करोगे. दे आर नॉट टॉर्चरिंग यू, बट डेफिनेटली दे आर द हेड ऑफ द फैमिली. एंड बहुत कम ऐसा होगा कि जब हम उनकी बातों को नहीं अग्री करेंगे, बिकॉज ऐसे शायद हमारे संस्कार ऐसे हो जाते हैं, हमें ऐसा ही बताया जाता है. सो व्हेन आई वाज 19, मेरा अपना नॉर्मल स्कूलिंग था, अपब्रिंगिंग था. व्हेन 19 जब मैं कॉलेज में पहुंची, तो कुछ ऐसा हुआ कि एक आर्मी फैमिली से हमारे यहाँ प्रपोजल आया फॉर माई मैरिज. सो मेरी फैमिली बिल्कुल आर्मी के बारे में कुछ नहीं जानती थी. सो माई मदर फेल्ट वेरी हैप्पी, बट आई थॉट आई एम टू यंग एट 19 टू गेट मैरिड. तो मैंने उनको बोला कि नो, आई एम नॉट इंटरेस्टेड इन गेटिंग मैरिड. तो मेरी मम्मा का ये कहना था कि एक बार मिल लेते हैं, इफ यू डोंट लाइक देन वी कैन से नो, बट एक बार मिल लेते हैं. बिकॉज अल्टीमेटली शायद ये एक थॉट प्रोसेस होता है कि एक लड़की को
मतलब आपका लाइफ एज अ गर्ल तभी स्टार्ट होगा जब आपकी शादी हो जाएगी, पढ़ाई लिखाई करियर एवरीथिंग इज टेक्स अ बैक सीट। आई एम टॉकिंग ऑफ ईयर 96 97। तो हमारे घर में तो वी वर वेरी वेरी ट्रेडिशनल एंड वेरी जो हमारे कस्टम्स थे उनको बहुत ज़्यादा सब लोग फॉलो करते थे। सो व्हेन आई मेट दिस गाय, मैं ये सोच के गई थी कि मैं ये बोल दूंगी कि आई डोंट वांट टू गेट मैरिड, आई एम ऑलरेडी हैविंग एन अफेयर किसी से, तो आप प्लीज मना कर दो, मैं मना नहीं कर सकती। दिस वाज द थॉट प्रोसेस, इस थॉट प्रोसेस के साथ आई हैड गॉन। बट कविता नेक्स्ट पिक्चर। बट somehow what happened कि when I met this man कि मुझे लगा कि ये मना ना कर दे मुझे शादी के लिए, and I should get married to this handsome gentleman, because you know army में वो कहते हैं ना tall, dark and handsome. So I saw this man with all those qualities, and from that moment I started praying कि वो मना नहीं करे and I should get married to this guy. But fortunately I will say that I was lucky enough to we got married. And in 97, I got married to Major Avinash Bhadoria, and I had a very beautiful married life. It was a brief marriage, but it was a beautiful life, and it was a dream come true for me. Rather, मैं dream come true भी नहीं बोलती हूँ, because you know मैंने ऐसा dream देखा ही नहीं था कि I will get married to an army officer और मेरा life इतना comfortable हो जाएगा. The man will take care of me so much. After 2 years of my marriage, I was blessed with a baby boy. तो ना सब कुछ इतना बढ़िया और स्मूथ चल रहा था, और यही देखा था कि मैन हैज टू टेक केयर। आई डेफिनेटली वाज डूइंग माय स्टडीज, मैंने अपनी पढ़ाई कंटिन्यू रखी शादी के बाद भी। बट एक होता है जो आपका ब्रेड विनर है, आपको ये कोई आपका कोई आपके ऊपर कोई बर्डन नहीं है कि आपको घर चलाना है, आपको चीज़ों को देखना है। ये आप जैसा मैंने बचपन से देखा था कि मैन ऑफ द हाउस हैज टू टेक केयर, द सेम थिंग आई वाज सीइंग इट विद माय हस्बैंड की ही हैज टू टेक केयर। और मैं बहुत एक अच्छी और रिलैक्स्ड लाइफ अपने फैमिली के साथ जी रही थी। फिर हम लाइफ में कुछ ऐसा होता है जिसको हम प्लान नहीं करते हैं, क्योंकि हम कभी भी अपनी लाइफ में बुरी चीजें प्लान नहीं करते, और वो आपके साथ जब होती हैं तो शायद आप एक सेटबैक में जाते हैं। वील गो टू द नेक्स्ट स्लाइड कविता। सो this was a turning point of my life. The coffin you see is of my husband. ये 4 years आफ्टर माई मैरिज, माई हस्बैंड जो थे वो कश्मीर में पोस्टेड थे। कश्मीर में जब वो पोस्टेड थे तो मैं अपने इन लॉज के पास रह रही थी, और कुछ ऐसा हुआ कि जब हमें पता लगा कि ही गॉट किल्ड, इन्होंने 4 आतंकवादियों को मारा था, बट उस मुठभेड़ में ये खुद शहीद हुए। तो इस चीज के लिए हम प्रिपेयर्ड नहीं थे। वील गो टू द नेक्स्ट दिस थिंग कविता। सो जब हम इन चीज, क्योंकि आई थिंक इन सेटबैक्स के लिए कोई प्रिपेयर नहीं होता है। दैट इज द वन थिंग आई थिंक नन ऑफ द ह्यूमन बीइंग थिंक्स आल्सो ऑफ लूजिंग देयर फैमिली मेंबर। और मैं इतना ज़्यादा शॉक में चली गई थी, बिकॉज आई वाज जस्ट 22 years of age when I lost my husband, and my son was not even 2. तो उस टाइम इस सेटबैक को देख के मुझे एक हिम्मत सी खत्म सी हो गई। एंड वील गो टू द नेक्स्ट स्लाइड। एक ही थॉट आता था, आई कांट। व्हेन आई से आई कांट, मतलब आई रियली वांटेड टू क्विट माय लाइफ। कई बार क्या होता है कि आपके साथ सर्कमस्टांसेस ऐसे होते हैं कि आप अगर स्ट्रांग है भी, तो आसपास की जो फोर्सेस हैं, जो आउटसाइड फोर्स हैं, जैसे कि आपके रिलेटिव्स हो गए, आपके एक्सटेंडेड फैमिली हो गई, फ्रेंड्स हो गए, बहुत लोग ना चाहते हुए भी आपके दिमाग में डालते हैं अब तुम्हारा क्या होगा, अब इस बच्चे का क्या होगा, अब कैसे रहोगे। सो डेफिनेटली इन चीज़ों ने मेरे दिमाग में भी बहुत असर किया, एंड मुझे लगा जो कि मैं टोटली डिपेंडेंट हूँ अपने हस्बैंड पे। मैं कैसे, मतलब फ्रॉम माई maternal home when I came to my in-laws family, like I was just being dependent on a man to take care of my life, my child, everything. In fact कि मेरा जो maximum thought process था, that was also कि हाँ, whatever they will approve, I will do things according to them. तो जब आप इस thought process के साथ बढ़ते हो तो फिर आप अपने आप को बहुत helpless feel करते हो. So I was into the same dilemma, and I decided कि अभी मुझे नहीं जीना है. एंड आई ऑल्सो थॉट कि मुझे अकेले जीना नहीं जीना है, या एक बच्चा है उसको भी लेके जाना है। वील गो टू द नेक्स्ट स्लाइड। और इन सब डिलेमा में व्हेन आई लुक्ड एट माय चाइल्ड, आप लोग बिलीव नहीं करोगे, घर में इतना क्योस था, एवरीबॉडी इज क्राइंग, सॉरोनेस है, एंड ये 2 साल से कम एज का बच्चा अपना खेल रहा है, एंड ही वाज ओनली
only human being at that point of time जो खुश था, क्योंकि इसको पता नहीं था कि father has gone, mother is planning to go. So you know, उस टाइम शायद इसकी जो स्माइल थी ना, उसने मुझे एक बहुत बड़ा लाइफ लेसन दिया कि चॉइस इज इन आवर हैंड. हम अपनी लाइफ में क्या डील करना चाहते हैं, जो होता है सेटबैक्स, नॉट एवरीथिंग इज इन आवर कंट्रोल, बट जो होता है व्हाट चॉइस वी मेक इज डेफिनेटली डिपेंड ऑन अस कि द वर्स्ट के बाद आप कैसे उस चीज को डील करते हो. एंड दिस चाइल्ड गेव मी रीजन टू स्माइल अगेन, अ रीजन टू लिव अगेन, कि मैं इतनी कमजोर नहीं हो सकती हूँ. एंड आप मानोगे नहीं, मैं इतनी ज्यादा कमजोर थी कि मैं अपने आप बाहर का कोई काम नहीं कर सकती थी, मैं कुछ भी अकेले नहीं कर सकती थी. आई ऑलवेज नीडेड somebody by my side to do my work. And with that thing, when I'm left like this, and you know how our society is, how a widow is treated, how an orthodox family treats a girl who has lost her husband, so I was into that kind of situation. But still I made a choice कि no, I can't lead a life on somebody else's pity. मैं किसी पे किसी की दया भावना से नहीं जीऊंगी, मैं बेचारी बन के ना खुद जीऊंगी ना अपने बच्चे को करूंगी. So we'll go to the next slide. So I made a choice, and this was a choice I made. You can see a picture of me sitting in uniform. So I decided to join the army. And you know, this was after 2 months of my husband's death. अपने हस्बैंड की डेथ के 2 महीने बाद मैंने सोचा मैं आर्मी ज्वाइन करूंगी. एंड we'll go to the next slide. एंड जब मैंने सोचा कि मैं अपने हस्बैंड की डेथ के बाद आर्मी ज्वाइन करूंगी, और व्हेन आई टोल्ड दिस टू माय पीपल, तो उन्होंने सोचा शायद ट्रॉमा में या सेटबैक में इसका दिमाग थोड़ा खराब हो गया, मे बी शील बी फाइन. और वो विल गो बैक टू द ब्लैक स्लाइड. तो आई दे टोल्ड मी कि आर्मी आपको इनवाइट नहीं कर रही है. इट्स वेरी वेरी प्राउड दैट योर हस्बैंड हैज done something so great for the nation, but army ka uniform is not by invite. You have to clear the exam, you have to appear for the exam, आपको मेहनत करनी पड़ेगी. It is not impossible, but you can do it. और घर के कुछ लोगों ने बोला कि क्यों परेशान होना, हम हैं, हम तुम्हारा ध्यान रखेंगे. So you had again दोनों तरफ की चीजें थी. कुछ लोगों ने बोला कि तुम कर नहीं सकती हो, हर तरह से आपको बताया गया कि आप कर सकते हैं, नहीं कर सकते, क्या परेशानियां आएंगी. बट मैंने बोला कि मैं करूंगी. एंड आई लॉस्ट माई हस्बैंड एंड ऑफ सितंबर, एंड दिसंबर में मैं एग्जाम के लिए बैठी. एग्जाम जब मैंने फॉर्म भरा और एग्जाम की जो मुझे डेट आई, उसमें से 20 और 22 डेज का फर्क था. इतना ही टाइम था मेरे पास. और मैंने इससे पहले कभी कोई प्रोफेशनल एग्जाम नहीं दिया था. मैंने कभी लाइफ में कुछ, आई वाज नॉट अ करियर पर्सन कि मैंने कोई करियर स्टडी की हो या करियर कोचिंग की हो. तो मैंने वो 20-22 दिन में बहुत मेहनत किया जस्ट टू फोकस कि एग्जाम क्या होता है प्रोफेशनल. बिकॉज आर्मी का एसएसबी इज द अपनी कंट्री का इज द मोस्ट टफेस्ट 5 डे का एग्जाम होता है, वेर यू आर analyzed on your mental, physical, emotional, every strength of your body, कि आपके अंदर कोई कमी तो नहीं है. So I was इसमें मेरे साथ प्रॉब्लम क्या था कि मेरा एक छोटा बच्चा भी था जो मेरे बिना कभी नहीं रहा था. तो मुझे उसको साथ में बैलेंस करते हुए मैंने वो 22 डेज मैंने काफ़ी मेहनत किया. एंड आई रीच्ड अकेडमी. वील गो टू द नेक्स्ट स्लाइड. मैं अकेडमी पहुंची. इसमें आप देख रहे होगे डिस्ट्रैक्शंस लिखा है, ये मैं हूँ अकेडमी में. अगर आपने फर्स्ट पिक्चर मेरा देखा होगा, हस्बैंड के साथ बैठी हूँ बच्चे को लेके, और ये अकेडमी पहुंचने के 3 महीने बाद के पिक्चर है. दैट इज हाउ आई वाज चेंज आफ्टर द ट्रेनिंग. सो व्हेन आई रीच अकेडमी, मेरा फर्स्ट डे ऐसा था अकेडमी में कि सबको, मुझे ऐसा फील हुआ कि मैं ऑफिसर बन गई. मैंने ऐसा रियलाइज नहीं किया, अभी तो कुछ मैंने किया ही नहीं है, एंड अभी मुझे पूरी ट्रेनिंग करनी है. और मैं इतनी वीक थी कि मैं रनिंग नहीं कर सकती थी, मैंने कोई स्पोर्ट नहीं खेला था, मैंने कुछ भी ऐसा एडवेंचरस या आई वाज नेवर inclined towards anything which was sports oriented or physical, जिसमें डिमांड था आपका, जिसमें आपको फिजिकली एक्टिव रहना है. और एकेडमी की जब ट्रेनिंग स्टार्ट हुई तो इट वाज बियॉन्ड मेरा मेंटल, फिजिकल, इमोशनल कैपेबिलिटी और कैपेसिटी से बहुत ज़्यादा था. इनिशियली तो मुझे शौक लगता था कि शायद ये चाहते नहीं है कि मैं ट्रेनिंग कंप्लीट करूं. द काइंड ऑफ
the training they are putting me in. कई बार मुझे ऐसा लगता था शायद मैं नहीं कर सकती, मुझे वापस चले जाना चाहिए, बट हर उस थॉट के साथ, और सबसे ज़्यादा डिफिकल्ट क्या था कि मैं अपने बच्चे को, माई ट्रेनिंग वॉज इन ऑफिसर्स ट्रेनिंग अकेडमी चेन्नई, एंड आई वॉज इन चेन्नई एंड माई सन वॉज इन कानपुर विद माई पेरेंट्स. तब मोबाइल फोन्स नहीं होते थे. मुझे जो हमारा ट्रेनिंग पीरियड था 6 to 7 months का, उसमें मुझे कोई कम्युनिकेशन नहीं होगा उससे. ओनली हर हफ्ते मेरी मदर का एक लेटर आता था उसकी फोटो के साथ, जो कि मेरे लिए ट्रोमैटिक, बहुत ट्रोमैटिक था, बिकॉज 6 to 8 months पहले लाइफ कुछ और थी, एंड सडनली माई एंटायर फैमिली मेरे हाथ से ऐसे लगता है फिसल सी गई. बच्चा कहीं हो गया, हस्बैंड इज नो मोर. So every night I used to cry in academy. My 6 months of training, not because I was not that strong, neither I was weak at that point of time. एक एक जो आप ह्यूमन इमोशन होता है कि आप रो रहे हो कि आप अकेले हो गए, बट एवरी मॉर्निंग आई यूज्ड टू गेट अप कि नो, आई विल क्लियर दिस ट्रेनिंग. If I will go back, I will go back as an officer, otherwise I am not going back. और मेरे घर में सबने बोला था कि अगर तुम नहीं कर पाओ तो कोई बात नहीं, तुम वापस आ जाना, तुम्हें कोई जज नहीं करेगा. And it is not about others judging you, it is about how I want to see my life in myself. And we'll go to the next slide, Kavita. And here comes the focus. मैंने ये slide इसलिए डाला है focus because it is very important. Life में बहुत सारे distractions आते रहेंगे, आप कुछ करना चाहेंगे, बहुत सारी ऐसी चीजें आएंगी जो आपको तोड़ने की कोशिश करेंगी, जो आपको वीक बनाएंगी, जो आपको हिम्मत को एक बार लगेगा कि मैं इसको छोड़ देती हूँ. बट आपने फोकस रखना है कि मुझे ये चीज करनी है, एंड ट्रस्ट मी ऑन दिस, वो चीज होगी. विल गो टू द नेक्स्ट स्लाइड. जब आपका फोकस रहेगा तो आपकी लिमिटलेस पॉसिबिलिटीज रहेंगी. इसमें आप सेंटर में देख रहे हैं, दिस इज मी. हमने कोई बास्केटबॉल मैच खेला था अकेडमी में. आई वॉज इन द टीम. Why it is important to tell that I was in the team, because मैंने कभी कोई sport नहीं खेला था, and to get selected in a game in the team, in the academy team, it was a very big achievement. So I qualified, I made myself to that level where I could be part of a team and play a match, and then you can see medals hanging, and so we won the match. Wow. That was a very, very big thing for me. And also this is after the game, we are having a celebration punishment. So whenever you used to win, or तो पुशअप्स करते थे. जब मैं अकेडमी पहुंची थी तो हम 1 या 2 पुशअप भी नहीं कर सकते थे. और ये when I've written limitless possibilities की एक स्टेज ऐसी आ जाती है कि आप काउंट करो और हम करते जाएंगे. So it is your sincerity, your hard work and your focus which can lead you to this. Nobody else can do it for you. It is you only have to do it. But condition ये है कि आपने अपनी हिम्मत नहीं हारनी है. We'll go to the next slide, Kavita. So here you can see me becoming an officer. This is my mother-in-law जो मुझे stars लगा रही हैं. मेरे father-in-law हैं, मेरे husband के unit के officers हैं पीछे. And I have written create your own path. So why this is important, this caption is कि I'll go back जब मेरे husband की death हुई थी, जहाँ पे लोगों ने मुझे कहा कि अब तुम्हारा क्या होगा, तुम कैसे जियोगे. कहीं पे ऐसा हुआ कि मैं खुद हिम्मत हार रही हूँ, कहीं पे मैं खुद जीना नहीं चाह रही हूँ, मैं खुद अपने आप को बहुत वीक समझ रही हूँ. वहां से मैंने अपना एक रास्ता खुद चुना. मेरी मदर इन लॉ ने मुझे कहा था कि कोई नहीं तुम्हें जज करेगा, तुम मत जाओ, हम घर पे हम तुम्हारा ध्यान कर लेंगे, तुम नहीं कर पाओगी. और जिस दिन मैं ऑफिसर बनी, मेरी मदर इन लॉ ने मुझे क्या कहा कि मुझे पक्का पता था तुम कर लोगी. सो दैट इज हाउ परसेप्शंस चेंज. अगर हम लोगों के अप्रूवल का वेट करेंगे तो शायद हम, अगर मैं उनकी बात उस टाइम मान लेती तो मुझे लगता शायद मैं नहीं कर सकती. लेकिन उन्होंने मुझे क्या कहा उस दिन कि हाँ हाँ मुझे पता था तुम कर सकते हो. सो व्हाट इज इम्पोर्टेंट इज कि यू अंडरस्टैंड कि आपको अपना खुद ही रास्ता चुनना है. लोग आपको साथ देंगे नहीं देंगे, आपका अप्रूव करेंगे नहीं अप्रूव करेंगे, बट इट इज टोटली ऑन यू कि आप अपने लिए क्या रास्ता देखते हो. वील गो टू द नेक्स्ट स्लाइड. जब मैं ऑफिसर बनी तो सबसे इम्पोर्टेंट था, मैं बहुत खुश भी थी, मैं रोई भी थी. एक लाइफ को दोबारा ऐसा लगा कि कुछ एक आगे मकसद मिल गया अपने बच्चे के साथ लाइफ को दोबारा जीने का. बट ये ना मेरा लाइफ का प्राउडेस्ट मोमेंट नहीं था. और जो भी मेरे लाइफ का प्राउडेस्ट मोमेंट है वो मैं आपको भी दिखाऊंगी. एंड ट्रस्ट मी, वो आज तक इससे बड़ा मेरे लिए अभी तक कोई मोमेंट इतने सालों में भी नहीं आया है. विल गो टू द नेक्स्ट स्लाइड कविता. This is receiving gallantry award of my husband from
the then president late Shri Abdul Kalam ji. मेरे हस्बैंड को सेकंड हाईएस्ट पीस टाइम गैलेंट्री अवार्ड मिला था, कीर्ति चक्रा. और इस फोटो में क्या इम्पोर्टेंट है कि आई एम वेयरिंग माय यूनिफॉर्म इन लेस देन 1 year ऑफ माय हस्बैंड्स डिमाइज. अवार्ड मैं तब भी ले अब इसमें है, एक तो मैं अगर अपनी लाइफ को क्विट कर देती तो शायद मैं यहाँ खड़ी नहीं होती अवार्ड लेने के लिए. बट मैंने लाइफ को 360 डिग्री चेंज किया. जहाँ पे हमें लेडीज को वीक समझा जाता है, जहाँ मुझे ऐसा कहा जा रहा था कि अब इसका क्या होगा, जिस यूनिफॉर्म को स्ट्रेंथ मानी जाती थी, मैंने उस यूनिफॉर्म को एग्जाम पास करके अपनी कैपेबिलिटी से पहना. और जब मैं पोडियम तक जा रही थी, जब मैं अपनी सीट से पोडियम तक जा रही थी इस अवार्ड को लेने, यू वोंट बिलीव कि एक सेंस ऑफ प्राइड एंड सेंस ऑफ सॉरो दोनों साइड बाय साइड चल रहे थे. एक तरफ लग रहा था बहुत दुख चल रहा है मेरे साथ, एक तरफ लग रहा था इससे ज्यादा बड़ा ट्रिब्यूट शायद आई कांट पे टू माय हस्बैंड. एंड इस सेरेमनी के बाद श्री अब्दुल कलाम जी ने मुझे खुद बोला कि ही इज वेरी वेरी प्राउड ऑफ माय हस्बैंड एंड मी. एंड आई बिकेम द फर्स्ट लेडी वाइफ जिसने 1 year के अंदर यूनिफॉर्म पहनी एंड अपना हस्बैंड का अवार्ड यूनिफॉर्म में रिसीव किया. सो दैट इज, आई थिंक, इससे बड़ा मेरे लिए आज भी कोई बड़ी अचीवमेंट नहीं है. चाहे मैं कुछ भी अचीव कर लूँ, ये अचीवमेंट के बाद ही कुछ आगे आता है. सो दिस इज ऑल बिकॉज I thought to create my own path. And we'll go to the next slide. मैंने अपना आर्मी का कॉन्ट्रैक्ट पूरा किया. I served in the army and उस टाइम शॉर्ट सर्विस कमीशन था. I completed my short service commission and I chose to take VRS. और फिर मैं बाहर आ गई, कॉर्पोरेट में काम किया. I didn't completed my MBA करके I started working in corporate. और कुछ टाइम ऐसा लगा कि लाइफ शायद अच्छी हो गई है, नॉर्मल हो गई है. जो एक वैक्यूम है हस्बैंड को खोने का वो तो कभी नहीं भरेगा, लेकिन एक फिर भी लगता है कि लाइफ थोड़ी पटरी पे आ गई है. ऐसा करके हम लाइफ जी रहे थे. वील गो टू द नेक्स्ट स्लाइड. एंड तब तक आई मेट विद अ वेरी बैड रोड एक्सीडेंट. This road accident was so bad that I was bedridden for 1 year. इसमें I got more than 17 fractures. I still have implants in my body. My back was broken, my leg was broken, my hand was broken, my jaw, collarbone was broken, my jaw was broken. You think of the thing and it was broken. So only God did showed so much of kindness that He did not break my spine. So I did not sustain any internal head injury. Otherwise, everything the doctor was seeing, it was broken. And I had multiple compounded fractures. It was like my bones were out of my body. So I was airlifted from place A to place B for my treatment, and for next 1 year I was bedridden. And we'll go to the next slide. When I was bedridden, it again throws you into a kind of low phase. Why again you have to take care of your child, life is going fine. और ऐसा कई बार लगता है कि आपके पीछे ही क्यों सब पड़े हुए हैं, या भगवान आपके पीछे ही क्यों पड़ा है. We have this thought very often. तो मुझे अभी ऐसा थॉट आता था, बट फिर मैं सोचती थी कि कुछ भी कहीं होता था, मैं एकेडमी में अपनी ट्रेनिंग को याद करती थी कि शायद मैंने वो किया है, वहां भी तो मैं पहुंची थी, जो कि बहुत मुश्किल है वहां पहुंचना. फिर भी मैंने उस चीज को हैंडल किया. और जब मैं बेड पे थी तो डॉक्टर ने मुझे बोला कि आप थोड़ा सा हमेशा लाइफ में, रेस्ट ऑफ योर लाइफ आप लिम करके चलोगे, बिकॉज इम्प्लांट्स हैं और आप रनिंग नहीं कर सकते. तो मैं कोई रनर नहीं थी, बट आर्मी में जाने के बाद थोड़ा बहुत रनिंग का शौक हो जाता है, बिकॉज इट बिकम्स पार्ट ऑफ योर लाइफ. सो मेरे लिए एक बहुत सोचने वाली बात हो गई कि अब मैं रनिंग नहीं कर सकती. मेरा एक्सीडेंट हुआ था कोई 2009 में. सो मैंने कहा कि मैं रनिंग नहीं कर सकती तो बड़ा, अब ऐसा नहीं कि मैं रनिंग के बिना रह नहीं सकती हूँ, इट इज़ नॉट कोई लाइफ एंड डेथ सिचुएशन नहीं है, बट एक माइंड में बैठ गया. एंड देन डॉक्टर सेड आप कोई एडवेंचर स्पोर्ट्स नहीं कर सकती हैं, कि इन चीज़ों में आपको रिस्क रहेगा, बिकॉज यू हैव सो मच ऑफ इम्प्लांट्स इन योर बॉडी. अगर कोई जर्क आएगा तो वो दोबारा आपके लिए प्रॉब्लम होगा. सो यू हैव टू बी वेरी केयरफुल. So I said ठीक है. And but I was at the same time, sitting on the bed for 1 year, where for first 3 months I couldn't even go to the washroom. Everything was on bed. I was 100% bedridden. Even my washroom activities was also on bed. So that was my condition for first 3 months. And then I will go to the next slide. So this I want you all to see very closely. And then I thought,
कि हर एक इंसान है, आर यू हैप्पी, आई हैव रिटन, आई थिंक एवरीबडी वांट्स टू बी हैप्पी इन लाइफ. बहुत शायद ही मुझे कोई ऐसा मिला है जो कहता है कि नहीं मैं तो दुखी रहना चाहता हूँ पूरी लाइफ, या मैं खुश नहीं रहना चाहता. तो आई थिंक ईच एंड एवरी ह्यूमन बीइंग वांट्स टू बी हैप्पी. So if you are happy, then keep doing whatever you are doing. But if you are not happy and you want to be happy, of course you want to be happy. So then you have to change something in life. So with this thought, I started thinking कि I will change something of my life. कि डॉक्टर ने सेड कि मैं दौड़ नहीं सकती हूँ, ठीक है मैं दौड़ नहीं सकती पर मैं चल तो सकती हूँ, कोई बात नहीं मैं लिम करके ही चलूंगी. एंड विद दैट थॉट आई फिल्ड एयरटेल मैराथन. इफ यू हर्ड ऑफ, मैंने एयरटेल मैराथन का फॉर्म भरा. अब मैंने अपने डॉक्टर को बोला, ही सेड यू कांट डू इट, इट्स नॉट पॉसिबल फॉर यू. सो आई सेड कोई बात नहीं, आई विल स्टिल गो, आई विल स्टिल पार्टिसिपेट इन द मैराथन. एंड मैं गई मैराथन में एंड डॉक्टर के कहे अनुसार मैं नहीं कर पाई. आई कुड ओनली डू, आई फिल्ड अ फॉर्म फॉर 5 kilometers एंड आई कुड डू 500 meters also, like not, I could do only 200 250 meters and my legs started paining very badly. और मैं वापस आ गई. And you know, I was not unhappy. Doctor said, see, I said you won't do it and you are just risking yourself and you are just trying to do something which is not possible now. So मैंने कहा कोई बात नहीं, एटलीस्ट मैं गई तो मैं 250 मीटर तो कर पाई ना. अगर मैं घर में बैठी रहती तो मैं वो 250 भी नहीं कर पाती. And with that thought, we'll go to the next slide. With that thought, I started doing slowly. And this picture you see, I've completed of my first 21 kilometers marathon. Wow. This is again an old picture. Now I regularly run. I am a runner. I don't limp. And I do have problem in my leg. Whenever I run, I get swelling in my leg. I do have problem. I don't put too much of my weight on my left leg, which has maximum injury. But you know, it is not impossible that I can't run. I finish it and now people ask me, how do you run? I give running tips also. So, you know, if I understand, and surprisingly, मेरा doctor भी हमारे साथ दौड़ता है. So, you know, it is important to understand कि बहुत सारी चीजें माइंड में डाल दी जाती हैं, पर वो आपके ऊपर है कि आप कितना आगे जाना चाहते हैं. We'll go to the next slide. This is my picture of doing skydiving. If you see the jump height, it is 15,000. My doctor said you can never do adventure sports. And when I thought of doing it, my friend said I tried this in New Zealand and my friend said you have gone crazy. They all filled 8,000 feet ka jump and I filled the maximum of 15,000. And my mother here back in India, she was like freaking out कि पागल हो गई है, गिर जाएगी, टूट जाएगा पैर, ये हो जाएगा. And I thought अगर मैं अपने डॉक्टर से पूछूंगी तो वो फिर मना कर देगा, करके ही बताते हैं, टूट जाएगा तो देखा जाएगा. We'll go to the next slide. And this is me after the jump and this is me during the jump. So taking risk is good. मतलब I was also very scared. मैं झूठ नहीं बोलूंगी, थोड़ा डर था कि लैंडिंग अगर ठीक नहीं हुई तो दोबारा पैर में प्लास्टर लगेगा. बट अगर रिस्क नहीं लिया तो पता कैसे चलेगा. एंड आई डिड अ वेरी सॉफ्ट लैंडिंग. सो दिस इज व्हाइल during the jump you can see me in the sky. And this is me after the jump standing again back on my 2 feet. So मेरे पैर नहीं टूटे and I could do it. तो अगर मैं एडवेंचर स्पोर्ट्स को सोचती कि नहीं कर सकती तो शायद मैं कभी नहीं कर सकती, लेकिन मैंने एक रिस्क लिया था. देयर वॉज, मैं फिर ऐसा नहीं कहती हूँ कि लाइफ में डर नहीं लगता, डर लगता है, लेकिन डर के आगे ही तो निकलना है. वो कहते हैं ना, डर के आगे जीत है. तो मैंने ये जो अटेम्प्ट किया था बहुत डरते डरते ही किया था. एंड मेरे फ्रेंड्स ने बोला तो 8,000 से कर ले जिससे मैं कर रही हूँ. मैंने कहा करूंगी तो एक ही बार कर रही हूँ तो मैक्सिमम हाइट से करूंगी, नहीं तो नहीं करूंगी. इट विल बी लाइक दिस वे और दैट वे. And so I could definitely overcome both of my physical trauma. Yeah. First, I overcame my emotional trauma when I lost my husband, and this was my physical trauma. I can't run, I can't do adventure sport. So we'll go to the next slide. So it is always, I say, never give up. It's one of my favorite photos. That life में हमेशा एक last chance मिलता है, और you should not let that chance go, and maybe that will show you your way of living. We'll go to the next slide. At the same time, I also say कि don't limit yourself. I do a lot of work for slum children. I'm work a lot for, yeah, we can hold it here.
I do while I was in academy, while I was in the army, मैंने काफी देखा कि एक war widows के लिए लाइफ कितनी difficult होती है. मैं खुद एक war widow थी. I could understand the pain, the problems. So I started connecting with war widows. वो आज तक भी मैं करती हूँ. And in whatever way possible, I try to help them. It's not always the financial help everybody needs. कई बार you need that emotional help to stand back on your feet with dignity. बहुत कॉन्फिडेंस शैटर हो जाता है जब आप अपने हस्बैंड को लूज करते हैं या अपने किसी फैमिली मेंबर को लूज करते हैं. आपका कॉन्फिडेंस खत्म हो जाता है. उस कॉन्फिडेंस को वापस लाना बहुत जरूरी होता है. सो with my support, I am very proud to say that ki 13 lady wives who lost their husbands, they became officers. Few of them are still serving. कुछ ने complete कर लिया है अपना period and they are working successfully in the corporate world. एंड इट इज़ वेरी इम्पोर्टेंट कि आप अपने आप को लिमिट मत करिए सिर्फ अपने में. जब मैं स्लम चिल्ड्रन के साथ काम करना शुरू किया तो मुझे लगता था शायद मैं इनको कुछ दे रही हूँ. बट इनके साथ काम करते करते मुझे रियलाइज हुआ कि ये बच्चे जो थे इनको ये नहीं पता, बहुतों को ये नहीं पता था इनके पेरेंट्स कौन है. इनको ये नहीं पता इनको इनका नेक्स्ट मील मिलेगा कि नहीं, इनको खाना मिलेगा, कपड़ा मिलेगा, सोने की जगह मिलेगी. बट दे वर ऑलवेज हैप्पी, हमेशा खुश, जंपिंग विद जॉय. एंड आई गॉट सो मच टू लर्न फ्रॉम देम कि जो भी हाल में है हमें खुश रहना चाहिए. बिकॉज हम फर्स्ट थिंग हमारे साथ कुछ होता है हमें लगता है हमारे ऊपर कितना बड़ा पहाड़ टूट गया, सब कुछ हमारे साथ ही हो गया. एंड आई think we are blessed कि we have a lot of things which are we are more than blessed कि जो हमारे पास इतनी चीजें हैं शायद बहुत सारे लोगों के पास नहीं है. तो मैं सोचती थी मैं इन बच्चों को कुछ देने जा रही हूँ, पर इन बच्चों से मैंने बहुत कुछ सीखा. तो आई ऑलवेज से डोंट लिमिट योरसेल्फ. हमेशा अपने घर के बाहर थोड़ा दायरा बढ़ाएंगे तो हमें बहुत सारी चीजें मिलेंगी सीखने को और करने को. we'll go to the next slide. And then I say कि it is very important to believe in yourself. जितने भी काम मैं करती आई थी मेरे को एक बिलीव था कहीं ना कहीं कि शायद मैं जो कर रही हूँ वो मैं सही रास्ते पे हूँ. कई बार क्या होता है कि हमें अपने ऊपर कॉन्फिडेंस नहीं होता कि शायद हम जो कर रहे हैं, हम खुद को क्वेश्चन करने लगते हैं. हम खुद को क्यों क्वेश्चन करते हैं? क्योंकि दूसरे हमें क्वेश्चन करने पे मजबूर कर देते हैं. तो हमें लगता है कि शायद हम गलत हैं या हम सही नहीं कर रहे हैं. सो इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि आप जो भी करिए आप, क्योंकि आपका डिसीजन है, ये आपका फेथ है, तो अपने ऊपर जरूर बिलीव करिए कि आप जो कर रहे हो. क्योंकि ओवर द पीरियड ऑफ टाइम मैंने ये देखा है कि बहुत लोग ऐसे हो जाते हैं जो आपको नीचे गिराने के लिए आपका फेथ तोड़ेंगे. बहुत लोग ऐसे होंगे जो चाहते नहीं है कि आप अच्छा करें, इसलिए वो आपका फेथ तोड़ेंगे और आप शायद उसमें कंफ्यूज हो जाएंगे. आप वो चीज कर भी सकते हैं तो भी आपको लगेगा शायद मेरे अंदर वो कैपेबिलिटी नहीं है. मैंने जितना भी काम किया मेरे अंदर वो कैपेबिलिटी नहीं थी, बट मुझे एक फेथ था कि मैं कर सकती हूँ, मैं करके दिखाऊंगी. और मुझे किसी को प्रूफ नहीं करना था, मुझे अपने ऊपर एक बिलीव था कि आई कैन डू इट. विल गो टू द नेक्स्ट स्लाइड. नेक्स्ट, अच्छा, बैक स्लाइड, या. सो आफ्टर ऑल दीज थिंग्स एक बार मेरी फ्रेंड ने मुझे बोला, वन ऑफ माई वेरी क्लोज फ्रेंड, दैट यू आर डूइंग सो मेनी थिंग्स, व्हाई डोंट यू पार्टिसिपेट इन अ पैजेंट. एंड इससे आपका लाइफ विल be more visible to people, people can learn a lot of things, you can inspire people. तो मैं इस बारे में इतना सोचती नहीं थी. मैंने कहा आई हैव माई जॉब टू टेक केयर, घर है. और पैजेंट इंडस्ट्री, ब्यूटी इंडस्ट्री इज समथिंग जो मेरे लाइफ में बिल्कुल दूर थी, बिकॉज बीइंग इन द आर्मी, the kind of life I was leading, my corporate life and all, this was something I had never thought of. So I just laughed on it and I just slept. फिर 2-3 दिन के बाद मैंने सोचा कि लाइफ तो एक ही है. I was not interested in inspiring anybody, but I was definitely interested to learn something new, to experience something new, which maybe I don't know मेरा next birth क्या होगा, मैं कर सकती हूँ कि नहीं. Whatever I can do in this life. With that thought, I participated in a pageant. ये भी एक तरह से जैसे मैंने आर्मी में 5 डे का एग्जाम दिया था, ये भी 5 डेज का था. जब मैंने ऑडिशंस क्लियर करके पहुंची तो देयर वर सो मेनी गर्ल्स, लाइक 60-70 गर्ल्स ऑल ओवर द ग्लोब. मेरे पास तो टाइम भी नहीं था बिकॉज ऑफ माई जॉब, घर, जॉब, एंड व्हाटएवर टाइम आई यूज्ड टू गेट, आई यूज्ड टू प्रिपेयर फॉर द पैजेंट. इसमें एक डांस करना था मुझे 1 मिनट का, और आई थॉट मैं तो डांस कर ही नहीं सकती, नीदर आई एम अ डांसर नॉर अ सिंगर, सो आई थॉट आई विल क्विट.
So my friend said, you can't quit for 1 minute. You have never quit in life, so you can't quit for 1 minute. मैंने कहा national stage पे I can't make a fool of myself ना कि dance ही नहीं आता. But still we said it's just 1 minute. We will do it. 1 minute 20 seconds, and you won't believe I became winner in that dance round. So that is कई बार आप सोचते हो कि आपको वो नहीं आता, but मैंने उस 1 minute के लिए बहुत मेहनत किया था. बहुत प्रिपरेशन किया कि ठीक है, it's like I have to give my best shot. I don't want to be the winner, but I have to give my best shot. We'll go to the next slide. And next. Yeah. And in trying to give my best shot, I also became the winner of that pageant. And that was totally a surprise for me. But as I told you earlier, एक believe होता है ना, आपको अंदर ही अंदर रहता है ना कि okay, you can do it. इसमें सबसे important what I would like to say, there were 60-70 girls. So मैंने कभी ये ध्यान नहीं दिया कि किसने क्या पहना है, कौन क्या कर रहा है, कौन क्या बोल रहा है. It is very important कि आप सिर्फ अपना competition खुद बनिए. It is very very important. हम आधे टाइम कहाँ पे कंफ्यूज हो जाते हैं जब हम दूसरे से अपने आप को कॉम्पीट करने लगते हैं. मैंने कभी बॉदर नहीं किया कि किसका ड्रेस कैसा है. वेयर आई सॉ कि लॉट ऑफ गर्ल्स वेर ओनली बिजी सीइंग कि उसका ड्रेस कैसा है, उसका वॉक कैसा है, उसका डांस कैसा है. इट इज नन ऑफ योर बिजनेस. माय बिजनेस इज टू वर्क ऑन माई सेल्फ. And maybe like those 5 days working on myself, I walked the ramp as a winner. That became a very very a beautiful moment for me, unexpected, but it's still it remains a very cherished moment when I walked the ramp as a winner. We'll go to the next slide. And after this, after the competition, I never thought I'll participate in a international pageant, because I did not have that much of time because of my job. But my director of the Mrs. India, they told me that 7 years से Mrs. India start हुआ है. ये इंटरनेशनल पैजेंट में सिंगल पेरेंट कैटेगरी में Mrs. India आता है, where a widow or a divorcee lady, she can participate. But unfortunately India से कभी कोई participation नहीं किया. And I was very surprised. She said कि because हमारा एक इतना social stigma है, एक taboo है कि एक widow participate करेगी या एक divorcee participate करेगी तो लोग क्या कहेंगे, because you have to wear a swimsuit, you have to walk the like you know how a pageant is, so you have to wear short clothes. तो कोई पार्टिसिपेट नहीं करता है बिकॉज हम एक उसमें फंस जाते हैं ना, लोग क्या कहेंगे. सो आई सेड ठीक है, since I was not interested, I said I will just participate for the heck of that, removing that social stigma कि अगर हम इस चीज में अटके रहेंगे लोग क्या कहेंगे तो हम कभी इस चीज से बाहर नहीं निकल पाएंगे. लास्ट थिंग इन माई लाइफ आई बॉदर कि लोग क्या कहेंगे मुझे. मैं ऐसा मानती हूँ कि वो भी मैं ही सोचूंगी तो लोग क्या सोचेंगे, कि let them think what they want to think. And with that thing I participated in this pageant held in Vegas, was held in Vegas. And I told my mother-in-law कि आप pageant को मत देखना because I will be wearing swimsuit and all. And I was coming from a family where we used to cover our head in front of our in-laws and all. So I saw a change in my mother-in-law. उन्होंने बोला कि no, I understand कि मैं Mrs. India की mother-in-law हूँ. I have changed. तो कितना अच्छा लगता है कि आपके साथ आप एक फैमिली को भी इवॉल्व कर रहे हो, अपने आसपास के लोगों को भी इवॉल्व कर रहे हो, जो इन चीज़ों को समझ रहे हैं कि हमें कैसे चीज़ों को बदलना है. और एक जो सोशल स्टिग्मा होता है कि एक विडो ये नहीं कर सकती, एक विडो वो नहीं कर सकती, आप उन सब चीज़ों को कर रहे हो. We'll go to the next slide. And this slide I have definitely made a very important one for me, where I have written recognitions follow. A lot of my clients, even in my corporate talks, they feel कि मेरे counseling sessions में they say कि मैम हम तो बहुत काम करते हैं, बहुत मेहनत करते हैं, लेकिन हमको मेरा recognition नहीं मिलता है, हमको लोग पूछते नहीं हैं, हमें लोग so I always tell them कि you do your bit. What is important is कि आप अपना काम करें. Whatever I have done in my life, since I've taken you throughout my life history, I have never worked for getting any recognition or getting any fame or award. What I have worked for my own happiness, for my own independent life, dignified life. And these recognitions have followed me.
तो अगर आप सिंसियरली अपना काम करेंगे, रिकग्निशन से अपने आप मिलेंगे, लेकिन अगर आप सोचे आप रिकग्निशन के लिए काम करेंगे तो शायद रिकग्निशन आपसे दूर भागेगा. सो आई ऑलवेज बिलीव कि जस्ट पुट योर हार्ट एंड सोल इन वॉट एवर यू आर डूइंग, डोंट बॉदर अबाउट रिजल्ट. और अगर कहीं कमी रहती है तो मुझे ऐसा लगता है कि किसी को ब्लेम करने से अच्छा एक बार हम अपने को देखना चाहिए. हो सकता है हमारे में कमी रह गई, एंड दैट इज व्हाई वी कुडंट गेट द डिजायर्ड रिजल्ट. सो रिकग्निशन, but that doesn't mean you should not put your passion, heart and soul, these are very important. कि कुछ भी करो, चाहे आप घर में, मैं कहती हूँ कुकिंग भी कर रहे हैं, like when I do cooking I put my heart and soul. When I don't do cooking I don't do cooking, but when I do then I do it with full. So it is very important, चाहे वो छोटे से छोटा काम हो चाहे बड़े से बड़ा काम हो, you have to do it with your full passion. It's your professional work, personal work, whatever. किसी को भी half heartedly करने से मजा नहीं है, खुद को ही मजा नहीं आएगा. And we'll go to the next slide. Wow, it's such a beautiful picture. So this says, take a chance and change it. When I put 3 dots, right? So, you know, in these 3 dots, you can write anything, whatever you want to change, you change it, right? I have changed a lot of things in my life. I will continue changing whatever I want to change. And I feel that it is about taking a chance. It is about trying. It is not important that you change everything. It is just not important. It is just that if you want something to change, अगर आपको कुछ लगता है जी, you know, difficult times, ऐसा किसी की लाइफ नहीं है जिसके नहीं आता है. डल मोमेंट सबकी लाइफ में आते हैं, बट दैट इज नॉट एंड ऑफ द लाइफ. ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है, ऐसी कोई चीज नहीं है जिसका सॉल्यूशन नहीं होता है. एंड आई ऑल्सो बिलीव वेरी स्ट्रांगली स्टेटमेंट में, दिस टू शैल पास. आप सब लोगों ने सुना होगा. अभी वी आर ऑल गोइंग थ्रू अ वेरी डिफिकल्ट फेज ऑफ कोरोना टाइम्स. पीपल आर लॉक्ड अप, जॉब्स हैव गॉन, बहुत अननोन फेयर हो गया है, बहुत इनसिक्योरिटी हो गई है लोगों में. बट यू नो, दिस टू शैल पास. यू शुड ऑलवेज रिमेम्बर कि ये चला जाएगा. कोई भी चीज, जब सूरज उग के अस्त हो रहा है तो फिर समय भी बदलेगा. अच्छा समय आया है तो बुरा भी आएगा, अगर बुरा आया है तो अच्छा भी आएगा. ह्यूमन लाइफ इज द ओनली लाइफ जो हर हाल में हर चीज को झेल सकती है. सो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट दैट यू टेक अ चांस इन योर लाइफ. किसी भी चीज में स्टक नहीं होना है कि इस चीज का आप सोचो कि सोल्यूशन नहीं मिलेगा. मैं इस चीज को नहीं मानती हूँ कि सोल्यूशन नहीं मिलेगा. अगर मैं कर सकती हूँ, मुझे ऐसा लगता है मैं कर सकती हूँ, तो हर कोई कर सकता है. बिकॉज आई हैव बीन, इवन माई फोक्स जो मुझसे 20 साल बाद मिलते हैं वो हैरान हो जाते हैं, यार हमें बिलीव ही नहीं होता यू आर द सेम पर्सन, राइट. कभी कभी मुझे भी बिलीव नहीं होता वैसे आई एम द सेम पर्सन, बट यू नो इट इज जस्ट. एंड ऑफ कोर्स व्हाट इज इम्पोर्टेंट इज यू नीड ऑलवेज नीड सपोर्ट. आप सोचिए कि कोई भी जर्नी आप अकेले कर लेंगे, आपके फ्रेंड्स, फैमिली, कोवर्कर्स, कलीग्स, आपको हमेशा इनका सपोर्ट चाहिए. अगर आपको कुछ चाहिए कि मुझे कोई हेल्प चाहिए, डोंट हेजिटेट. कभी ये मत सोचो कि सामने वाला क्या सोचेगा. मुझे हेल्प चाहिए होती है, मैं आज भी मुंह खोल के मांगती हूँ. जब तक आप मांगोगे नहीं, आपको मिलेगी नहीं. सो नेवर हेजिटेट टू आस्क व्हाट यू नीड. दैट इज एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड. हम लोग आधे टाइम ये सोचते रह जाते हैं कि पूछे नहीं पूछे, कहें नहीं कहें, लेकिन आप जब तक कहेंगे नहीं, आप पूछेंगे नहीं, नोबडी कैन रीड योर माइंड. एंड यू नेवर नो, आप सिर्फ एक बंदे की हेल्प मांगने की सोच रहे हैं, आपको 10 लोग हेल्प करने को तैयार है. बिकॉज इन माई लाइफ, दिस माई एंटायर जर्नी, आई हैव नॉट बीन able to do alone. My parents have supported in army. My lot of colleagues have supported during the training. Lot of people supported. For my Mrs. India thing, my friends supported. Even today, I do so much of social work. So many people support me. So you can't. ना वो एक कहते हैं ना, man is a social being. You have to be around people, and this time we would have understood it more कि how important we want to be with everybody. So never ever hesitate. चाहे वो आपका, कई बार मुझे कुछ नहीं आता, आई गो, माई सन इज नाउ 21, मैं उसके पास जाके पूछ लेती हूँ. ही आपको नहीं आता ना, तो यार मुझे भी कुछ नहीं आएगा. So but I never hesitate to ask, right? So it is very important never to shy away from asking it from anybody. सोचना भी नहीं कि वो क्या सोचेगा. इतना टाइम क्यों आपने वेस्ट करना. आपको शालिनी, आपकी आवाज नहीं आ रही है. अभी अभी आ रही आ रही है, आ रही है. Yeah. Okay. So with that, next slide, I will say thank you. Okay. So that this is how I have come to the end of my presentation and of my journey.
and I hope I didn't bore you guys much, but I really enjoy talking about it because मुझे ऐसा लगता है if I can inspire one life, I can change one life, because it's the story of a very ordinary human being. You all must be doing really wonders in your and thank you, Kavita, for sharing the screen so smoothly. It was really helpful. Thank you so much, and I'm ready to take the questions if there are any. Yeah, Shalini ji, आपकी journey, it's so emotional to hear also. आप कैसे बताते हो, मुझे तो उसी पे ताज्जुब हो रहा है कि it is so difficult to speak out the entire journey every time. It's actually very difficult because हम लोग को सुनने में ही इतना वो लग रहा है, तो आपको बोलने में कितना लग रहा होगा. So hats off to you because हर चीज के लिए हिम्मत चाहिए, और आपने जब भी हिम्मत की जरूरत थी आपने उसको दिखाया है कि हिम्मत है आपके पास. एंड मैंने बहुत सारे क्वेश्चंस लिखे थे कि आपसे पूछूंगी. बिल्कुल, I'm ready to take the questions. So मैं आपसे ये भी पूछना चाहती हूँ शालिनी जी, आप इतनी छोटी सी उम्र में आपने कैसे डिसाइड किया कि आप आर्मी जैसा इतना टफ कॉल, मतलब छोटे से बच्चे को छोड़कर आप कैसे डिसाइड कर पाए उस टाइम? मैं अपने हस्बैंड के से जो क्लोजनेस हुई थी, इट वाज बिकॉज ऑफ आर्मी. वो शायद आर्मी में नहीं होते तो शायद मेरी उनसे मैरिज नहीं होती, बिकॉज माय फैमिली आल्सो गॉट मी मैरिड टू हिम बिकॉज ही वाज इन द आर्मी. तो कहीं ना कहीं आफ्टर हिज लॉस मुझे ऐसा लगा मैं उनसे दूर हो गई हूँ. एंड उस टाइम मेरे पास एक ही फीलिंग आई कि शायद इफ आई वेयर द यूनिफॉर्म मे बी आई कैन बी विद हिम. आई टेल यू दैट मुझे उस टाइम मार्टरडम, सैक्रिफाइस, ये सब वर्ड समझ नहीं आते थे, बिकॉज आप इतने यंग हो, आपकी अपनी फैमिली है, आप उन चीजों को नहीं समझ पाते हो. मेरे पास एक बहुत बड़ा एक दुख था कि आई हैव लॉस्ट माय हस्बैंड एंड हाउ सून कैन आई बी विद हिम. सो आई थिंक वो जो थॉट था कि मेरे को यूनिफॉर्म अगर मिल जाएगा तो शायद आई कैन बी इन द सेम एनवायरमेंट, आई कैन बी अराउंड हिम, आई विल बी विद द सेम पीपल. सिर्फ वो थॉट उस टाइम आया था, और उस थॉट को जब मैंने शेयर किया इनके फ्रेंड्स, आर्मी के फ्रेंड्स से, तो definitely they were very surprised, but at the same time they felt कि maybe अविनाश सर की वाइफ है तो she has to be strong and that is why she has made that decision. So सिर्फ that was a thought in my mind, nothing else. and मुझे नहीं पता था ये कैसे होगा, क्या होगा. and you won't believe academy में भी बहुत ऐसे moments आते थे जब मैं नहीं कर पाती थी. तो मैंने उस टाइम भी आई यूज टू टेल माई हस्बैंड, इमोशनल जो एक कनेक्ट होता है कि आई डोंट नो, फॉर बिकॉज ऑफ यू आई एम हियर नाउ, यू विल ओनली टेक मी आउट ऑफ दिस प्लेस एंड आई वांट यू टू टेक मी आउट द वे आई वांट इट. सो कहीं ना कहीं मुझे वो पुश भी वो मिलता था उनसे, और आज भी मैं कहीं अटकती हूँ तो आई रिमेम्बर हिम एंड आई थिंक ऑफ हिम दैट यू हैव टेकन मी आउट फ्रॉम सो मेनी डिफिकल्टीज, यू विल टेक मी आउट फ्रॉम एवरीवेयर. तो एक आपका एक जो बिलीफ होता है किसी चीज में, that belief has made me whatever I am doing. So श्वेता बोल रही है कि आपकी बायोपिक मूवी बननी चाहिए शालिनी जी. तो मेरी एक बायोपिक मूवी बन रही है, पाइपलाइन में है. we have written the story and all, but तब तक कोरोना आ गया. Okay, that's really nice because it is we were hoping it to get it released in end of 2021, but unfortunately 2020 में उसका shoot start नहीं हो पाया. So if God willing आएगा तो you all will come to know. Of course, because I think movie is the only medium जहाँ से कि आप maximum लोगों को reach out कर सकते हो. So yes, definitely. I never knew in life I will connect to such nice people like you, but I think God has planned it. Actually मुझे लगता है शालिनी जी की obstacles are only opportunities. अपने अगर आप ऑब्स्टिकल्स को डिफिकल्टीज की तरह देखेंगे तो वो डिफिकल्टीज लगेंगी. अगर ऑब्स्टिकल्स को आप एक और दिन की तरह देखेंगे कि लाइफ का एक और दिन आया है जो कि वैसा नहीं है जैसा आपने सोचा था, तो आपको रास्ता मिल जाएगा. बिकॉज थोड़ा सा हमें अपने कंफर्ट, अब जो 2020 में हम लाइफ जी रहे हैं, आई थिंक किसी ने भी ऐसी लाइफ प्लान नहीं की होगी. जब हमने सबको हैप्पी न्यू ईयर बोला होगा और वाओ हम 2020 में जा रहे हैं, तो किसी ने नहीं सोचा होगा कि फरवरी के बाद से हम किसी डब्बे में बंद हो जाएंगे. इतना लाइफ का बिकॉज नोबडी नोज कि हम, मतलब मैं सबको ये बोलती हूँ कि इट विल बी योर अचीवमेंट इफ यू स्टेप इन 2021. True. Because you don't know, corona will hit home,
Absolutely. But that doesn't mean that we stop living this year. अगले साल के अगले साल देखी जाएगी. तो आज का भी दिन अगर आज मैंने सुबह से बिताऊं तो मैं जैसा हूँ अच्छे से रहूंगी. I will try to make this day a productive day. I will do whatever I want to do. If I want to sleep, I will sleep. But what my point is कि unhappiness को आप बुलाएंगे तो वो आपके पास आएगी. अगर आप unhappiness को दूर करेंगे तो वो दूर चली जाएगी. और I always repeat it because अभी बहुत सारे मैं sad news भी सुनती आ रही हूँ कि किसी भी प्रॉब्लम का ऐसा नहीं होता कि सोल्यूशन नहीं होता. मैंने बहुत वर्स्ट सिचुएशंस देखी हैं लाइफ में. जब मैं बेड रिडन थी, जब डॉक्टर ने बोला कि 1 ईयर आप बेड पे रहोगे, उससे ज़्यादा मेरे लिए कोई दुख की बात नहीं थी. 1 ईयर जॉब नहीं रहेगा, कुछ नहीं रहेगा, मैं कैसे करूँगी, क्या करूँगी. उसमें से भी बाहर निकल के मैं मतलब उस टाइम से खड़े होना मेरे लिए एक चैलेंज था और उसके बाद मैं रनर बन गई. अगर उसका सोल्यूशन इतना ऊपर तक पहुँच सकता है तो किसी चीज़ का भी सोल्यूशन निकल सकता है. राइट. तो कभी भी आप ये मत सोचो कि किसी भी प्रॉब्लम का सोल्यूशन, हर प्रॉब्लम का सोल्यूशन है. देयर इज, अगर प्रॉब्लम आई है तो सोल्यूशन लेके आई होगी, आपने ढूंढना है उसको बस. सही बात है शालिनी जी. आजकल अपने इतना सुसाइड्स भी बहुत सुन रहे हैं. सो दैट इज वेरी वेरी वरीसम. सो एट एवरी एज, ऐसा नहीं है कि कोई छोटे एज में नहीं कर रहे हैं. वी आर हियरिंग टीनेजर्स आल्सो कमिटिंग सुसाइड. वी आर हियरिंग एक्टर्स, एंटरटेनर्स, एवरीबॉडी, लाइक हर स्फीयर से लोग अब कुछ, पता नहीं ऐसा टाइम आ गया है कि क्या. बट आप इसके बारे में अगर कुछ कहना चाहते हैं. हाँ. सो अब कल का सेशन क्यों कैंसिल हुआ? बिकॉज आई लॉस्ट माय नेबर. She was known to us and she committed suicide like just 3-4 hours before the session. We came to know that she's committed suicide with 2 small kids. You know, and reason is still not known. We are still not aware why she did that. Yeah. And she is the not the only one. ऐसे कई केसेस हमने सुन लिए हैं पीछे. तो मैं ऐसा मानती हूँ कि ह्यूमन लाइफ जो है ना, यू आर रियली ब्लेस्ड टू बी बोर्न एज अ ह्यूमन. हम कोई एनिमल हो सकते थे, हम कोई इंसेक्ट हो सकते थे, हम कोई रेप्टाइल हो सकते थे. ह्यूमन लाइफ, you really have to be blessed that you got a birth of a human. And human brain is the only brain which functions, जो दिमाग काम चला सकते हैं. एक डॉग को नहीं पता कि सड़क पे कार हमको हिट कर देगी, पर हमें पता है तो हम सावधानी से चलते हैं. So if we have got that much of sanity, और अगर आपको लाइफ मिली है तो लाइफ खत्म भी होगी. If you are born in a natural way, so you will die also in a natural way. So there is no need to finish your life with your own hands. I have no respect for people, sorry to say that, but I have no respect for people who commit suicide. I definitely bless their soul to be in peace, but I know that their soul can never be in peace because you are leaving something undone and going away. You are running away from a problem. And if running away from a problem gives a solution, then everybody can run away. At the same time, you are leaving so many people crying. You're causing them so much of pain. So what I say ki respect your own life which you have got. आपको लोग थोड़े दिन में भूल जाएंगे, थोड़े दिन रोएंगे, फिर सब जी लेते हैं. नथिंग लाइक आई लॉस्ट माय हस्बैंड, लाइफ खत्म हो जाएगी लेकिन चली ना. एंड टुडे आल्सो वी स्माइल एंड लाफ. जाने वाले के साथ कोई नहीं जाता है. थोड़े दिन आपको दुख लगता है, फिर आप नॉर्मल हो जाते हैं. सो माय एडवाइस व्हिच आई फॉलोड, मैंने भी ऐसा सोचा था बट मैंने किया नहीं. थॉट सबको आता है, हो सकता है मुझे भी कई बार आ गया हो, बट कहने और करने में बहुत फर्क होता है. एक थॉट का आना और उसको करना, पहली बात तो कोशिश करनी चाहिए कि ऐसे नेगेटिव थॉट्स ना आए. बट ठीक है, माइंड है, थॉट्स आ जाते हैं. बट इम्पॉर्टेंट क्या है कि अगर आपके पास नेगेटिव थॉट्स आते हैं तो आपको पॉजिटिव थॉट्स भी आएंगे. तो ट्राई एंड वर्क ऑन द पॉजिटिव थॉट्स. आप जितना एफर्ट एक नेगेटिव थॉट को लगा रहे हैं, अब कोई सुसाइड करता है पंखे में लटक के, मैं सोचती हूँ कि जितनी देर आप एक पंखे में लटकने के लिए एक पंखा ढूंढते हो, एक कपड़ा ढूंढते हो, एक फंदा बनाते हो, उतने टाइम में आप उस प्रॉब्लम को सॉल्यूशन ढूंढ लो. दैट इज मच इजियर. You know, if you are so brave to give up your life, end your life with your own hands, I think you need to be less brave to live your life. Killing your own self requires much of lot of courage. Yeah? Lot of courage. So it is very important to understand that you are blessed to have a life of a human being. Don't और हमें जाना तो सभी को है, खुद से क्यों जाएं? जब बुलाया जाएगा तब जाएंगे, right?
Yeah, so live your life with dignity so that people love you, people respect you. Yes. That is very important. That अपने is all. लिए जी सकते हो तो फिर आप दूसरों के लिए जियो. अपने लिए नहीं जी सकते, जो दूसरों के, लाइक व्हाई आई सेड लिमिट, डोंट लिमिट योरसेल्फ. आप बाहर जाके देखो, बड़े बड़े कष्ट हैं लोगों के पास, हमारे पास तो कुछ है ही नहीं कष्ट. हम तो, हमारे सेल्फ मेड कष्ट है कि हमारे साथ ये हो गया, वो हो गया, ये हो गया, वो हो गया. So it is very important. I just say respect your life. It's very important. Absolutely. शालिनी जी, पायल has a question. So Yeah. पायल को मैं unmute करूंगी. पायल आप हो? मेरा कोई क्वेश्चन नहीं है कविता. अच्छा, आपने हैंड अप किया था इसीलिए मुझे लगा. नहीं 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 नहीं, वो मैंने ऐसे किया. ओके ओके ओके. सो शालिनी, Somebody is saying I have a question. I don't know. Shweta? Who is Shweta? okay, yeah. I will just. So I can read everybody's comments. Thank you everybody for your compliments. yeah, Shweta. जय हिंद शालिनी जी, बहुत अच्छा लगा सारा सेमिनार सुन के. मैं बहुत ज्यादा इंस्पायर्ड हूँ. मैं सुन भी रही थी, काम भी कर रही थी. जब आपका एक्सीडेंट वाला आया, मेरा दिमाग खराब हो गया. मैं एकदम शॉक हो गई कि कितनी चीजें बीत गई है. और आप ऐसे बता रहे हो जैसे माने मैं, और हमारे यहाँ छोटा छोटा प्रॉब्लम आता है, मैं तो एकदम ही वो हो जाती हूँ. तो कितना सीखने को मिला, इतना इंस्पिरेशन मिला है, मैं बता नहीं सकती आपको. बहुत बहुत थैंक्स. मेरा बस एक यही क्वेश्चन था, इतनी यंग लाइफ में अपना हस्बैंड खोना, हमारी सोसाइटी ऐसी है, कितना प्रेशर डाला जाता है कि रीमैरिज के ऊपर में एंड ऑल, ये वो दूसरा ऑप्शन देते ही नहीं है. और बहुत फास्ट कि जल्दी जल्दी कि जल्दी से वापस से बसा दो. माने कुछ सोचना ही नहीं, माने उसका तो कोई डिसीजन ही नहीं, उसकी तो कोई मन का पूछा भी नहीं जाता है. बाय द टाइम ग्रीविंग भी खत्म नहीं होती है, उसके पहले ही हो जाता है. तो आपके साथ भी जैसे, प्लीज डोंट बी ऑफेंसिव. और No. It's perfectly fine, and so what I like to say that what you're saying is right, and I was also part of that. And I did get remarried. I don't talk about it because again it was not fortunate with me. My marriage didn't went off well because the guy I married, he never wanted to accept my son. And again, it was a choice I had to make, because I never hid with him that I have a child. When you're marrying me, you're aware that you are marrying a lady with a child. But after the marriage, if you say that you don't want my child and I should give him back to somewhere or give it to somebody, so again, it was left on me what is more important for me. And for me, it is always my child who is important because I chose to bring him into this world. So it is my responsibility to take care of him. So I moved out of that marriage. So that is also one setback in my physical trauma, you can say. But I try not to talk about it because I don't feel it is important now. And also, when I was bedridden, I lost my dad out of cancer. My brother lost his 1-year-old daughter out of cancer. You know, there are a lot of setbacks I have seen. At times, if I will tell my story, तो बहुत लोग पूछते हैं आप ही का story है कि किसी और का भी add किया है. So a lot of things I removed from my story. I used to talk about my second marriage also, but slowly I feel that's not important to talk. But definitely when people do ask me a question, I never shy away from replying. So I feel what is important is what you choose. You should believe that what you're choosing is right. So I believe that now I don't need a man to take care of me. I need a man to understand me, provide happiness to me and my son. I don't need a financial this thing. I just need the emotional support. If a person can't provide me that person is not required in my life. Absolutely. Very Absolutely. Thank you so much, ma'am. That's Thank all, you so Shalini. much for मैं हमारा गला भर रहा है आपकी ये सुन के. और मैं सोच नहीं पा रही हूँ आप कैसे बोल रहे हो, इतना स्ट्रेंथ. भगवान आपको बहुत बहुत वो दे. मेरी बेस्ट विशेस आपके साथ है मैम. थैंक यू सो मच फॉर I really when I started my session I said that women are very strong, you know,
हमें Exactly. स्ट्रॉन्ग समझा नहीं जाता, बट वी आर स्ट्रॉन्ग, यू नो। आई थिंक मुझे ऐसा लगता है वी हैव द गॉड हैज गिफ्टेड अस दैट वी कैन नर्चर अ लाइफ। आई थिंक Yeah. इससे बड़ा स्ट्रेंथ भगवान ने हमें किसी को नहीं दिया है, राइट? व्हेन यू हैव गॉट दैट स्ट्रेंथ, आई थिंक यू आर स्ट्रॉन्ग। And ma'am, you're the perfect example of the very strong woman. Everybody is strong, you know. You also must have Exactly. done strong things. Yeah. Thank you so much, ma'am. Thank you, thank you. Shalini ji, I really hope we meet someday Sure, sure. in real life also. Virtual में तो मिलकर बहुत ही अच्छा लगा. Real में जब मिलेंगे तो पता नहीं आप कितना इंस्पायर करोगे, but truly a journey which was so difficult, but आपने सुनाया इस तरह से कि आप उसी के लिए बने थे. So hats off, and truly you are an inspiration and a real hero, and we wish you all the best in whatever you choose to do. And एक last मैं आपसे advice मांगूंगी for all the women who are here. Sure. So आप अगर उनको कुछ बोलना चाहते हो, because they all want to plan something, but वो first step लेने का confidence नहीं आ रहा है कि वो किस तरह से लिया जाए, और घर बच्चे उन सब का ख्याल आ जाता है जब भी कुछ सोचते हैं. I totally agree with you. I have gone through the same. और कई बार होता है कि my parents were there when I thought of doing something which was like out of the box. Yeah. कई बार लोगों के पास वो सपोर्ट भी नहीं होता. मेरे पास ऐसे लोग भी आते हैं जो कहते हैं हमारे पास कोई सपोर्ट नहीं है, स्टिल आई हैव अ चाइल्ड टू टेक केयर. यू नो, योर चाइल्ड कैन बी योर स्ट्रेंथ. और एकदम से कोई चीज को बड़ा छलांग नहीं मारना है, आप छोटे से ही स्टार्ट करो. आपने अगर कुछ करने की सोची, एक तो हमारे को फियर होता है कि हमें ये क्या प्रॉब्लम होगा. सो आई विल टेल यू वन स्मॉल थिंग, आप लोग सब जरूर करना, मैं आज भी करती हूँ उसको. आज रात को आप सोना, एक पेपर ले लेना, उस पे आप लिख लेना कि आपका सबसे बड़ा फियर क्या है, जो आप करना चाहते हो उसके लिए आपका क्या फियर है. कि अगर मैं ये करूंगी तो क्या होगा, अगर मैं ये करूंगी तो that is your fear, that is why that thing is stop, you are getting stopped to do that. Please write it down, read it, and keep it under your pillow. Next morning when you get up, without reading it, just tear it off and throw it in the dustbin, flush it, whatever you want to do, and आपका वो fear चला जाएगा. आप रात भर उस fear के साथ सोए और सुबह जब आपने उसको फेंका है ना, तो आपने अपने fear को दूर किया. उस रात भर में आपके सबकॉन्शियस माइंड में वो फियर आपको एक रास्ता दिखाएगा. और मैं आज भी करती हूँ. ऐसा नहीं है कि मुझे डर नहीं लगता, ऐसा नहीं है कि लाइक द लेडी हु आस्क्ड मी अबाउट माय सेकंड मैरिज, यू नो, आई वाज स्कैर्ड. दुनिया क्या कहेगी, पहली मैरिज ऐसे हो गई, सेकंड में अगेन शी इज मूव्ड आउट. बट दैट वाज माय फियर. आई वाज नॉट बॉदर्ड. I just slept with it for few nights and I said, no, I have to move ahead with my child, you know. And if I keep thinking दुनिया क्या कहेगी, दुनिया को नहीं पता ना what my son is going through, what I am going through, right? So it is important कि you deal with your fear. और आपका subconscious mind हमेशा आपको सही रास्ता दिखाता है. मैं आज भी कहीं भी अटकती हूँ, I write it down and I keep it under my pillow, और सुबह बिना पढ़े फेंक देती हूँ और मुझे रास्ता मिल जाता है. Try it, please try it. That is my advice to you. And अगर आपको रास्ता नहीं मिले, connect me on any social media. We will together find a way. Yeah. So very nice session, Shalini ji. मैं सबको एक बार बोलूंगी कि please अपना वीडियो ऑन करें. I think it's an honor to have a picture with her. So we'll just quickly click a picture and फिर हम शालिनी जी को फ्री कर देंगे because Thank you so much. I really enjoyed talking to all of you. it's a beautiful, all wonderful women. शालिनी जी, आप इस तरह के कितने प्लेटफॉर्म्स पर जाते हो हर महीने? अभी तो because of the corona I am doing a lot of webinar and I do with corporates and institutes. So I do जो भी calls आती है, I definitely go and do it because I सिर्फ women के प्लेटफॉर्म्स आप कितने attend करते हो? No, सिर्फ women के कितने करती हूँ? हाँ. women
के बहुत कम आते हैं, बिकॉज आई वुमेन्स डे पे बहुत सारे आते हैं, बिकॉज मेरी स्टोरी लोग सोचते हैं कि men also need to learn from, because men also give up, right? Absolutely, yes. So for Women's Day, Mother's Day, I have lot in demand for women, but otherwise on a regular basis I do for corporates where there are men also in attendance. Yeah. I have done talks for Army, for Navy. I have done for Sure Revlon. you will remember us, because we are amongst the very few women groups which you. So you know what I do whenever I do a talk, whatever talk I am doing with whichever client, I always make a different presentation and write their name so that I remember. याद रहेगा, हाँ. है ना? I don't, my more or less my all presentations are same, but I always make a separate and write a name so that I can keep remembering who all I connected with. Very nice, Shalini ji. It was truly an inspiration to meet you, Thank and I really hope कि कभी आपसे मिलने का मौका जरूर मिले. Definitely, I would love to. And thank you so much. Thank you. Thank you, and all the best to all of you. Please stay happy, cook a lot of things, and eat and enjoy with family. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you, everyone. Thank you. Yes. आपके लिए claps तो बहुत बनते हैं. Thank you so much. Thank you.